So hello everyone, welcome back to all you board regulatory bodies, and today we are going to discuss a very important section from both phase 1 as well as phase 2 point of view. Now mind you, this is one of the section which is one of the most underrated sections in the RBI grade B exam, चाहे फिर वो phase 1 की हो या फिर phase 2 की हो. ये underrated क्यों है एक बार देख लेते and see the lecture till the end. क्यों? क्योंकि इसमें मैं ये बताऊंगा that how you are going to actually tackle English section in phase 1 also as well as phase 2 and why this is essential. phase 1 में आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए इंग्लिश ही हेल्प करेगा. phase 2 में whooping 100 मार्क्स है आपके टोटल इंग्लिश आंसर राइटिंग के लिए. सो दैट इज व्हाई watch till the end. I'll tell you some secrets, some strategies which would be really helpful for you. Now when we first start our discussion, we will start with phase 1. हम बस अब phase 1 की बात करेंगे. And to understand how English section is there, first we have to understand the overall cutoff and exam pattern. We all know out of the overall 200 questions, हमें ये पता है कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, फॉर 30 मार्क्स. नाउ you could see here last 5 years overall cutoff has been given for the English. अब बाकी के यहां पर कट ऑफ हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आर इंग्लिश सेक्शन प्रिपरेशन. इफ यू सी लास्ट 2 years तो आपको पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितना है, 4.5 4.5. द एवरेज वैल्यू ऑफ द कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 4 से लेके 8 के बीच में होती है फॉर लास्ट 5 years. ठीक है, अब एक मेन चीज यहां पर लाइक समझते हैं, एंड दैट मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज whenever if you want to clear phase 1, the very decent strategy for any hard working or maybe a veteran student who has already given, he knows it, that you cannot actually score in quant and reasoning. आप quant and reasoning में score नहीं कर सकते. क्यों? Considering their difficulty level of both quant and reasoning, you just have to clear the bare minimum, that is the cutoff, and you have to try to score in both GA as well as English. GA is for 80 marks, English is for 30 marks. You should try that out of this 30, although the cutoff is 4.5, but just targeting this 4.5, this is one of the biggest blunder major of the students are doing. आपको overall cutoff भी तो clear करना है, and that is why in English you should always get 20 plus marks, and in GA of course you should try to get, if the paper is difficult, 35 plus, if the paper is moderate you should try 40 45 even 50 plus. Okay, now when you will try to do that in GA as well as English, that time only you would be able to clear the overall cutoff. Because quant और reasoning में अगर आप just bare minimum clear करते हो, maybe 10 marks 11 marks, quant में अगर आप 5 6 7 8 marks ले लेते हो, अगर आप tally करते हो, you cannot clear overall cutoff unless and until you score really very well in GA and English. Now let us talk about English. English section जब हम देखते हैं, why it is underrated. So the first point why English section is underrated, because of course this is not something which we are going to demystify, but it is a truth. Out of all the sections in phase 1, English is the most easiest subject. तो English चारों, ठीक है, चारों sections में से GA, Quant, Reasoning, English सबसे easiest है. लेकिन इसके साथ साथ कोई ये नहीं समझता है कि easiest तो English बहुत है, लेकिन ये साथ ही साथ में स्कोरिंग भी है. और स्कोरिंग के साथ साथ सबसे मेन चीज क्या है, जितना आप इंग्लिश में इनपुट दोगे उससे कई ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा. इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ो. नो, you even study for 15 minutes, but the measure of output or the marks which you will be getting in your phase 1 as well as phase 2 really very good. So therefore you are getting really good outcomes from this particular subject. Now this is where we don't know about this. We just feel that English easy है, हम कर लेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कर लोगे, बट द प्रॉब्लम अगेन अटेस्टेड विथ इंग्लिश इज, इफ यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश और मे बी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, what are the problems which you are going to face during the phase 1 exam? The first is, of course, your race with time. So English is an easy subject or easy section in your phase 1, but the problem is whatever the questions are there, you will always feel कि आपके पास बहुत कम टाइम है. और वो इसलिए होता है because whatever comes in phase 1, it may be grammar, it may be reading comprehension, it may be even your vocabulary, whatever questions are being asked in your English section, they always will take up your time. Second, most importantly,
you should have high accuracy, and third important of all, when you are going through all these questions, your reading speed will matter a lot. Reading speed will matter a lot, because I have seen many of the students, उनको इंग्लिश इजी तो लगता है, बट दे एंड अप सेइंग कि सर मैं इंग्लिश का सेक्शन पूरा नहीं कर पाया. एंड द रीजन इज, ऑफ कोर्स, एज यू ऑल नो, आप एग्जाम में इतने स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हो, कभी कभार आप इस सब्जेक्ट को इतना कम कंसिडर करते हो, या फिर यू डोंट इवन गिव इट अ हीड, यू डोंट इवन try to prepare for it or give your little time for the preparation, and then you suffer. ठीक है? So it's one of the most underrated and most misunderstood section in your phase 1. बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर 25 प्लस आपको मार्क्स मिल गए इंग्लिश में तो आपकी लॉटरी लग गई, आपका वैसे भी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हो तो. दिस इज अबाउट योर फेज 1. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश इन फेज 1. अगर हम फेज 1 की बात करते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो 3 कंपोनेंट है. वॉट एवर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इट मे बी क्लोज टेस्ट, इट मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, इट मे बी ग्रामर, इट मे बी योर आरसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चाहे क्वेश्चंस कुछ भी पूछे. नाउ इंग्लिश के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है क्वेश्चंस के, बट इन सारे टाइप्स को आप इन 3 कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. एक है ग्रामर, सेकंड है वोकैबुलरी, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. जब मैं वोकैबुलरी की या फिर जब मैं ग्रामर की बात करता हूं, ग्रामर इज कंप्लीटली कंसेप्चुअल. इन द सेंस क्या, देयर आर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स. पहले आप क्या सीखते हो? यस, पहले आप ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीजें सीखते हो. देन यू कम टू द मोर एडवांस थिंग्स लाइक एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन. देन यू कम टू टेंसेस. आपको टेंसेस कभी समझेंगे ही नहीं अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ नहीं रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई सीक्वेंशियल topics are there, sequential concepts are there, and that are nothing but conceptual. अगर आपको एक concept समझ में आया, it is interlinked, तो दूसरा भी समझ में आएगा, तीसरा भी समझ में आएगा. And that's why whenever you are preparing for a grammar, it is a conceptual, and in your paper major questions come from your grammar. I can tell you right now, it may be fill in the blanks, it may be interchanging the overall sequence of the sentences, it may be even finding out the errors, grammatical error in a sentence or statement, etc etc. ये सारे क्वेश्चंस ग्रामेटिकल होते हैं. इसके लिए आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी रूट मेमोराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो रिक्वायर्ड होता है आपके वोकैबुलरी में. नाउ वोकैबुलरी क्वेश्चंस आल्सो फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इनमें वोकैबुलरी के थोड़ा सा पार्ट आ जाता है. नाउ व्हेन यू कंपेयर विद बैंकिंग एग्जाम्स, आरबीआई में वोकैबुलरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मिनिमम क्वेश्चंस, नॉट एज कंपेयर टू ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब में थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वोकैबुलरी इज कंप्लीटली रूट मेमोराइज और मेमोरी बेस्ड. तो आपको एक सपोज वर्ड पता है तो शायद से दूसरे को वो पता नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई हियर रीडिंग इज रिक्वायर्ड अ लॉट. देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. नाउ हियर व्हेन आई कम टू यू, we are talking about in phase 1 reading comprehension, in phase 2 we are talking about essay writing, précis writing, and again reading comprehension also comes there. So this comprehension ability is nothing but how fast you can read, how quickly you can understand, how quickly you can analyze, and how quickly you can reproduce. ये 4 steps होते हैं comprehension ability के. क्या? Simple. How quickly you can read. Simple reading में आप एक suppose मैं 1200 वर्ड्स का अगर आपको एक कंप्लीट ऐसे या फिर पैराग्राफ देता हूं, आप कितने जल्दी उसको पढ़ते हो, आप कितने जल्दी उसको समझते हो, आप कितने जल्दी उसको एनालाइज करते हो, कितने जल्दी आप पॉइंट्स को जोड़ते हो कि क्या उसका मीनिंग हो सकता है, और कितने जल्दी अगर आपको आरसी का एक क्वेश्चन पूछा गया है तो कितने जल्दी आप उसका आंसर देते हो. ये है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, और ये तभी आ सकती है जब आप इसकी रोज प्रैक्टिस करते हो. सो नाउ हाउ टू टैकल ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. अब देखो, इनके 2 सोर्सेस हो सकते हैं. एक है आपका फ्री सोर्स, दैट इज यूट्यूब, एंड विच इज मोर इंपॉर्टेंटली इंफोग्राफिक, इन द सेंस टीचर यहां पर आपको खुद पढ़ा रहा है. तो द बेस्ट सोर्स फॉर यूट्यूब आई कैन टेल यू इज 2 टीचर्स फ्रॉम ऑलिव बोर्ड. फर्स्ट इज सबा मैम एंड सेकेंड इज ऑफकोर्स आर कपिल सर. तो दोनों के वीडियोज आप फॉलो कर सकते हो. उन्होंने ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है. नॉट ओनली दैट, एडिटोरियल्स भी ऑलिव बोर्ड के मेन यूट्यूब चैनल पे चलते रहते हैं. यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट. नाउ इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनी वीडियो, और इफ यू वांट टू स्टिक टू एनी मे बी कंटेंट और मे बी बुक, सो देयर आर 2 सोर्सेस. बुक की जब हम बात करते हैं तो एक हो गया रेनन मार्टिन,
ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द 3 सेक्शंस. एंड थर्ड इज कंपल्सरी, दैट इज एनी न्यूज पेपर. अब न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर जब आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स रीड करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. डेफिनेटली ग्रामर के लिए भी इट इज एन वैल्यू एडिशन, बट ये दो चीजों तो आपकी न्यूज़पेपर ऐसे सॉल्व करता है बिकॉज इट्स अ डेली हैबिट एंड प्रैक्टिस. When you are preparing for English section, always remember ये बाकी के क्वांट रीजनिंग की तरह सब्जेक्ट नहीं है. Rather ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. इंटरलिंकेज ऑफ द टॉपिक है जो कि मैंने बताया. आपको अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पता नहीं है तो टेंसेस क्या आप खाक बता पाओगे? फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये इसमें टॉपिक से ज्यादा इसका फ्लो बहुत मैटर करता है इंग्लिश लैंग्वेज में. कवर वोकैबुलरी इन टाइम एंड प्रैक्टिसिंग every topic, every sequential whatever concept is there related to that, you should be able to solve major of the questions. These are some of the topics. ये सारे के सारे topics confirm RBI में repeated topics है. So these are repeated topics. Now out of these repeated topics which are very very important, पहला है आपके सारे ग्रामेटिकल, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन. ठीक है. दूसरे दो इंपॉर्टेंट है आरसी एंड क्लोज टेस्ट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट विच आई थिंक इंपॉर्टेंट इज रीअरेंजमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड फ्रेजल वर्ब्स एज वेल एज फिल इन द ब्लैंक्स. तो जो मैंने आपको बताया है आउट ऑफ दिस ऑल रिपीटेड टॉपिक्स, आपके ग्रामेटिकल हो गए, आरसी क्लोज टेस्ट हो गई, फिर आपका रीअरेंजमेंट हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स और फ्रेजल वर्ब्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए. नाउ दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ लेट अस लुक एट फेज 1 के लिए व्हाट शुड बी योर ओवरऑल स्टडी प्लान. सिक्वेंशियल स्टडी कर लेना, न्यूज़पेपर रोज रीड कर लेना, एंड अलोंग विद द न्यूज़पेपर वही के वही देयर एंड देयर इटसेल्फ यू प्रैक्टिस. एडिटोरियल पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ो, कितने जल्दी तुम्हें समझ में आता है देखो. Are you able to answer any question on the editorial? What are the words which you didn't understand from the editorial? ऐसे पढ़ाई होती है. Solve maximum questions on each topic of grammar or maybe whatever concepts are there and cover the whole syllabus. कुछ भी छोड़ना मत because you don't know what actually topics are asked. ये है आपके सारे important topics which you have to cover. पहले है subject, that is verb agreement, then tenses, then conditional sentences, preposition, complex preposition, conjunctions, advanced verbs, synonyms, antonyms, phrasal verbs, reading comprehension, clothes test and rearrangement और para jumbles. तो ये आपके सारे टॉपिक्स है एंड आई विल रिकमेंड यू, ये कंपलसरी है, ऐसे ही सीक्वेंस में आपको जाना है. ये गलती मत करना कि आरसी पहले, क्लोज टेस्ट पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करता हूं. नहीं, यू गो इन दिस डायरेक्शन ओनली बिकॉज दिस इज व्हाट आई वुड एडवाइज. अब बात करते हैं फेज 2 की. तो फेज 2 में हमें पहले पता है क्लियरली, पेपर 2 इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. इट हैज 3 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स एंड टोटल टाइमिंग इज 90 minutes. The problem here is 3 questions are there. One is essay in which it is for 30 marks. You have to write in 600 words. Presi 30 marks you have to write in 180 words but give a appropriate title to it. And more importantly, last is RC. Simple 40 marks को आपको 4 क्वेश्चन नहीं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब ये रहा आपका 2023 का इंग्लिश का पेपर. ये है ऐसे के क्वेश्चंस. ये है आपका प्रेसी जो जेंडर गैप और टेक्नोलॉजी के ऊपर आया था, और ये है आपका तीसरा आरसी जो कि इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर आया था. सो यहां पर आप ऐसे देख सकते हो, जब भी आप ऐसे देखते हो 4 ऐसे टॉपिक्स आर देयर ऑफ व्हिच यू हैव टू राइट 1. आपका पहले ऐसे का टॉपिक ईएसआई सेक्शन से था, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट. दूसरा टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड था, डिजिटल करेंसी, क्योंकि 2023 में सीबीडीसी बहुत मार्केट में न्यूज में था. तीसरा आपका था मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक, अगर आप देखते हो इनोवेशन मोटिवेशन की तरफ से. एंड द फोर्थ वन वाज मल्टीलिंग्विस्टिक सोशल मीडिया अकाउंट फॉर बिजनेस. सोशल मीडिया बहुत ही बूम हो चुका है 2022, 23, 24 में. सो दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स से 4 टॉपिक था. चारों में से एक आपको चूज करना था और इसके ऊपर लिखना था. नाउ द पॉइंट इज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल फेज 2. फेज 2 के लिए कभी भी प्रिपरेशन जब आप आंसर राइटिंग की करते हो, इट इज रियली वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द फेज 1 प्रिपरेशन. यहां पर अगर आपको क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स के ऊपर ऐसे लिखना है, अगर आपको डिजिटल करेंसी के ऊपर लिखना है, अगर आपको मैनेजमेंट के ये मोटिवेशन के ऊपर लिखना है, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर लिखना है, व्हाट इज द थिंग व्हिच यू विल रिक्वायर? यस, अवेयरनेस. आपको इन चारों टॉपिक्स में से एक टॉपिक के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए विच एक्चुअली डिस्टिंक्टिवली मेक्स यू स्टैंड आउट
फ्रॉम द क्राउड विच इज राइटिंग द आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जाम, और उसके लिए आपका डीप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट विल कम थ्रू रिगरस रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स एज वेल एज लिटिल बिट रिसर्च. एंड दैट इज व्हाई सिंपली यहां पर भी अगर आप देखते हो जेंडर गैप एंड टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली इंप्रूविंग, गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू द जेंडर्स, क्रिएटिंग इक्वेलिटी, ये सारी चीजें प्रेसी में पूछी गई थी. आपको टाइटल देना था और फिर से उसको पैराफ्रेज करना था. आरसी में भी इकोनॉमिक थ्योरी. सिमिलरली अगर आप 2022 का भी पेपर देखते हो, ठीक है, अगर आप 2022 का भी पेपर देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड दीज आर ऑल द टॉपिक्स. पहला टॉपिक देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. सेकेंड इज रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप in economic growth. Peace cannot be kept by force, but it can be achieved by understanding. Abstract topic पूछा गया है. And last is India become medical destination for the world. ये COVID-19 के बाद, ठीक है. All the 4 topics again एक बार रिलेट करने की कोशिश करो. That which topic you will choose to write ऐसे. Simple. You have to be more aware. तो अब इसका solution क्या है? If these are the topics through which they are telling to write something about these topics, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल होती है वो चेक होती है फेज 1 में. फेज 2 में आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल तो है ही, बट एट द सेम टाइम योर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो चेक्ड. दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एक्सप्रेशन कैसा है. एक्सप्रेशन इन द सेंस कंटेंट सबके पास होता है, पर आप पेपर में उसको कैसे रिप्रोड्यूस करते हो, दैट मैटर्स. सो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो है ही, बट साथ ही साथ में जो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं, योर एक्सप्रेशन दैट मैटर्स अ लॉट. और ये कब होगा? फिर से न्यूज़पेपर जब आप रीड करोगे. तो यहां पर रीडिंग न्यूज़पेपर इज रियली वेरी वेरी मस्ट. एंड खास करके जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडिटोरियल्स को स्किप करते, रीड एडिटोरियल. सपोज एक एडिटोरियल डिजिटल करेंसी के ऊपर आया है, तो देखो राइटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडिटोरियल लिख रहा है. You will get understanding that what is the way of writing, different way of writing. Don't criticize, don't actually choose the sides, but rather just observe that how a writer is writing the answer. Okay, multiple writers are there in newspaper, so you will get different perspective of writing and you will understand the art of answer writing. Writing practice आपको weekly करनी पड़ेगी, and that also mainly concerning for essay and précis. Now always remember what I tell to many of the students, there is no bad essay or bad answer. There is always a good, better, or maybe an exceptional answer or essay. And how to make your essay from good, better and exceptional? Yes, by practicing and by improvising on your mistakes. What are the sources or how to prepare for phase 2 answer writing? आप UPSC essay topics को definitely देख सकते हो और इनके मॉडल आंसर्स भी देख सकते हो, जो कि YouTube में आपको बहुत ही इजीली मिल सकता है. सेकेंड इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, खुद सीखना, ठीक है. एंड हाउ टू डू दैट? सिंपल. एनीबडी हु स्टार्ट्स आंसर राइटिंग विल नॉट स्टार्ट इट बाय राइटिंग बेस्ट आंसर, ठीक है. तो योर थिंग वुड बी that you start answer writing and then you compare it with model answer, then you try to see what your mistakes are and then you try to improve. Over a span of time when it becomes your habit, automatically आपके अच्छे आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएगा. YouTube वीडियोस डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, आप किसी को भी फॉलो डेफिनेटली कर सकते हो, मेनली हु इज रिलेटेड टू यूपीएससी डोमेन. तो आप कोई भी ओपन सोर्सेस है बहुत सारे, तो वहां पर वो ऐसे के टॉपिक्स देते हैं और उन ऐसे के टॉपिक्स को एक्चुअली टोटली डिबैकल कर देते हैं. दे ओपन अप द ऐसे कि क्या इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, किस तरह से इसको लिखा जाता है, एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प यू अ लॉट. हमने फेज 1 के बारे में भी डिस्कस किया, फेज 2 के बारे में डिस्कस किया. नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच like undervalue we are doing for this English section. So don't underestimate it. It's really very very important. And most importantly, दिन के 15 मिनट भी अगर दे दोगे, you will score a lot. So thank you very much and see you next time.